आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम सलाम दक्कन। आम इंतखाबात 2019 से पहले हुकूमत बनाम अपोजिशन की जो लड़ाई है एनडीए बनाम कांग्रेस तक सिमटती नजर आई है, जिसकी वजह से एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश सिंह 105 के मुकाबले 125 वोटों से राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। वोटिंग के दौरान उड़ीसा की बीजेडी, तमिलनाडु की एआईएडीएमके और तेलंगाना की टीआरएस ने बिहार सीएम की अपील पर हरिवंश का साथ दिया। वहीं वाईएसआर कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियों ने दोनों का बायकॉट करके हरिवंश की जीत की राह को हमवार कर दिया। देखने वाली बात यह है कि नंबर की इस कमी को देखते हुए बीजेपी ने जेडीयू एमपी को एनडीए उम्मीदवार बनाया, साथ ही अपोजिशन पार्टियों को साथ लाने के लिए नीतीश कुमार के रिश्तों का इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस अपोजिशन यकजहती को कहीं ना कहीं भुना नहीं पाई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी समेत कई जमातों को यह भी शिकायत रही कि कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। नताज के बाद आंध्र की सियासत गर्म होने लगी है। वाईएसआर कांग्रेस के इस फैसले पर टीडीपी से बीजेपी की हिमायत के तौर पर ले रही है। वहीं विजय साई रेड्डी ने इसे दोनों का बायकॉट बताया है। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद तजावीज के बाद इस बार भी वाईएसआरसीपी का फैसला बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि आम इंतखाबात 2019 में वाईएसआर कांग्रेस किसके साथ जाएगी। While no confidence motion resolution was moved in the parliament, BJP expressed that when there is no members in Lok Sabha, why these opposition parties introduce no confidence motion. Yes, straightway I am posing my question that when there are no sufficient numbers available in Rajya Sabha for BJP, why they are coming forward for contesting for deputy chairman of Rajya Sabha? It is a straight question. There is no doubt that all the regional parties and anti-Modi parties are joined hand together to win Rajya Sabha deputy chairman position. We expect votes from BJP also, those who are disagree with Narendra Modi. Definitely, it is a lesson which is going to teach by all opposition parties. Political Affairs Committee of YSR Congress Party has taken a decision not to support BJP or BJP alliance parties. On the other side, Congress Party or Telugu Desam Party. It will not support any of these parties. YSR Congress Party would have supported if at all the non-Congress opposition parties like NCP, SP, BSP or Trinamool Congress would have fielded the candidates. Now that Congress Party has decided to field its candidate, YSR Congress Party, as per its policy, because both the national parties and also the regional party Telugu Desam Party have ditched and betrayed the people of Andhra Pradesh. And on one hand, Congress Party has not properly drafted the AP Reorganization Act, and it has not given the special category status for the state of Andhra Pradesh. On the other hand, Bharatiya Janata Party, after coming to power, it has not fulfilled the promises that have been made either in the AP Reorganization Act or the promises, special category status promise, what has been made by the then Prime Minister on the floor of the House. Therefore, we will not be supporting BJP or alliance parties on the other side. On the other side, Congress Party or Telugu Desam Party. So what you are going to do? We have decided to abstain from voting. We will not vote for any of these parties. We would have voted if any other non-Congress party would have fielded the candidate. और स्पेशल स्टेटस को लेकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने टीडीपी को निशाने पर लिया है। तुलासई रेड्डी ने बीजेपी के साथ टीडीपी को रियासती अवाम के साथ धोखा देने का इल्जाम लगाया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 4 साल तक इख्तिदार का मजा लेने के बाद आज उन्हें अवाम की याद सताने लगी, जबकि अवाम दोनों जमातों की हकीकत को जान चुकी है। Both BJP party and TDP party, both are deceiving the state of Andhra Pradesh. Both parties are doing injustice to the state of Andhra Pradesh. For the last 4 years, they are in alliance. In the center,
BJP and TDP in the NDA government. In the state, TDP and BJP in the NDA government. As per Andhra Pradesh Reorganization Act and as per the promises made by the former Prime Minister Manmohan Singh ji, there are 3 boons given to Andhra Pradesh. और काफी जोड़ तोड़ के बाद कर्नाटक में बनी इत्तेहादी हुकूमत का खतरा अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि 10 हफ्ते पुरानी कुमारस्वामी सरकार को कुछ एमएलए बीजेपी के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे पूरी तरह खारिज करती नजर आई। रियासती वजीर डीके शिव कुमार का कहना है कि यह सब बीजेपी का नाकाम शिगुफा है, लेकिन वो 5 साल इसका इंतजार करे क्योंकि कुमारस्वामी हुकूमत अपनी मुद्दत-ए-कार पूरा करेगी। दूसरी तरफ सीएम कुमारस्वामी इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है और किसी भी वक्त काबीना की तौसीक करके कुछ नए लोगों को जगह भी दे सकते हैं। No, it is all a total false being created by BJP. Well, how can 10 MLAs be? It is not so easy. In democracy, still 4 months, no one can move the no confidence motion. Number 2, they have to be, one of wanted to go to BJP. If anyone wanted to go to BJP or anyone want to come to Congress also, they will have to resign. And resigning and getting elected is also not a small job. So this is all false rumors which has been there. There is a stability government. We have been supporting this government, and government will run for the continuous 5 years. We will give a stable government, we will give a stable administration, and the people of Karnataka is happy. But some friends are not happy, they could not digest, they could not come to power. They are creating a lot of rumors. It is all false. Entire Congress party and the JDS unit is united. I don't want to comment on the BJP. और कर्नाटक में तालिबात के हिजाब के बाद एक कॉलेज ने तलबा की दाढ़ी पर भी एतराज जताकर सनसनी मचा दी है। राजधानी बेंगलुरु के एक नर्सिंग कॉलेज ने कश्मीरी तलबा को दाढ़ी रखकर क्लासरूम में आने से मना कर दिया। हालांकि रियासती हुकूमत ने इसको लेकर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। रियासती वजीर डीके शिव कुमार का कहना है कि बाहर से आए तमाम तलबा की आजादी और हिफाजत को लेकर सरकार अलर्ट है और मुल्क की रवायत पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि हुकूमत ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। See, we will not allow such type of things to happen. No doubt our students should be very clean and hygienic, but as far as the students who have come from any part of the country, on the security angle, a lot of students are staying in Bangalore. We have already directed the principal to admit them. There will be no chaos. It is our duty to protect them on the national interest. Kashmir students or some other students are staying in Bangalore. We have already instructed the concerned colleges. There will be no such bar. We will not allow them to misuse their power, and they will be admitted. As far as the academic is concerned, we will give them all protection. Some principal try to overact too smart, but we will not allow them. If such is the case, we will keep the institution or the principal under the suspension. So we will not allow. We want to have a very good atmosphere, and we doesn't want to harass any of the students. The issue you are referring belongs to a private nursing college. The college will have its own do's and don'ts for the students. If those students wants to take the course and attend the classes, they have to follow the rules and regulations. They cannot give excuses or religious excuses in an educational institutions. And more so when they are working, studying in a nursing college, hygienic part is very important. That's what the college feels. And the college and the student have to resolve it. We do not interfere, nor support, nor oppose this move. और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी बेंगलुरु से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शाहिद, ये नया फरमान एक कॉलेज का जहां पर कश्मीरी जो तालिबे इल्म हैं उन्हें दाढ़ी रखने नहीं दी जाएगी, दाढ़ी लेकर के वो कॉलेज में या दाढ़ी रखते हुए कॉलेज में नहीं आ सकते, इसको हुकूमत कितनी संजीदगी से ले रही है और क्या कोई एक्शन अभी हुआ है और कॉलेज की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? और देखिए इमरान, जिस तरह से ये फरमान जारी हुआ है इसमें ये कहीं ना कहीं एक इशू को जन्म दे रहा है। इससे पहले भी जो इस तरह के वारदात पेश आए हैं, लेकिन इस बार जो मामला पेश आया है कश्मीरी स्टूडेंट्स के सामने, ये एक
नया और पेचीदा मामला फिलहाल ये बेंगलुरु में है। हालांकि कश्मीरी स्टूडेंट पर पहले भी हमले हुए हैं, चाहे वो जबान को लेके हो या फिर दूसरे इश्यूज को लेके बेंगलोर में हुए हैं, लेकिन ये दाढ़ी को लेके कॉलेज की तरफ से इस तरह का कदम उठाना वाकई एक शर्मनाक बात है। हालांकि हुकूमत इस पर संजीदा है और डीके शिव कुमार ने भी कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कॉलेज इंतजामिया पर किस तरह से प्रेशर बनाया जाएगा। हालांकि दाढ़ी जो है किसी किस्म की क्या कॉलेज इंतजामिया अपने मौकिफ पर अभी भी कायम है, जबकि ये खबर अब बन चुकी है, हुकूमत भी कह रही है कि हम इस बारे में एक्शन लेंगे, ऐसे में अभी भी क्या कॉलेज इंतजामिया अपने मौकिफ पर कायम है या फिर ये हुक्म वापस ले लिया गया है या ये एतराज वापस ले लिया गया है? देखिए इमरान, ये जो फरमान है ये इंटरनल फरमान है। उनका कहना है कि अगर आप दाढ़ी रखेंगे तो हमारी जो इंटरनल मार्क्स होते हैं जो स्टूडेंट को कॉलेज की तरफ से इंतजामिया की तरफ से दिया जाता है उसमें कटौती होगी। तो ये बात जो है अब ये ऑफिशियली जो है उनका अनाउंसमेंट नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स को उन्होंने इस तरह की बात कही थी। अब देखना होगा कि कॉलेज पर किस तरह से प्रेशर बनाया जा सकता है, कॉलेज इंतजामिया पर किस तरह से प्रेशर बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद काजी इस पूरी बातचीत के लिए। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं नाज़रीन, लौट रहे हैं सलाम दक्कन में अपने जुनूब की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। कर्नाटक की जमीयतुल कुरैश ट्रस्ट ने गौरक्षकों के नाम पर होने वाले हमलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ईद उल अजहा के दौरान जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त हो रहे हमलों के साथ ही जानवरों को लूटने का इल्जाम भी लगाया है। तंजीम ने इसकी शिकायत वजीर आला कुमारस्वामी से करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। साबिक वजीर रोशन बेग के साथ कुरैश तंजीम की शिकायत पर सीएम ने पुलिस को ऐसे मामलात पर नजर रखने की हिदायत दी है। सीएम से मुलाकात हुई, होने के बाद सीएम ने अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अच्छी बातचीत की। करने के बाद हम ना डीजीपी को फ़ोन कर को बोला हमारे सामने फ़ोन करे, पूरे स्टेशन आपको उसने देना, सबको रोकना, पकड़ा पकड़ी का जो हो रहा है, फिर हम ईद का मौका है वो नहीं होना अगर बोलकर दिए। मैं फिर पूछा बहुत ही परेशान, नहीं वो मेरी जिम्मेदारी बेफिक्र होकर को बोले। उसके बावजूद भी पकड़ा पकड़ी तो बननी हो रही है। ये जो है दरअसल पूरी गुंडागर्दी है। ये बीफ के नाम पर सिर्फ नाम दे रहे हैं बीफ का, ये जो माल पकड़ कर ले जा रहे हैं पूरा गुंडागर्दी के साथ ये ग्रुप आता है, इसके बारे आकर हमला करते हैं। ये हमला करके जानवर जो भी है जब्त कर लेके जा रहे हैं यहाँ से। इसको ये नहीं देख रहे हैं कि इसको पहले माजर करना है, स्टेशन को लेकर जाने के बाद उसको माजर करना है कि इसमें गाय है बैल है जो भी है, इसको कुछ नहीं करते, बैल को भी पकड़ लेके जा रहे हैं। ये मामला जो है सिर्फ खाली जमीयतुल कुरैश का नहीं है, ये जो पकड़ने का मसला है, ये सारे जानवर पकड़ रहे हैं, ये सारी कौम का मसला है, सारी मुस्लिम बरादरी का मसला है। कुर्बानी जो है सिर्फ जमीयतुल कुरैश वालों का नहीं है, तो सब मिलके इसके पीछे लड़ना चाहिए। हम लोग को अकेले जाके फाइट करेंगे तो हम लोग सिर्फ सीएम तक जाएंगे, सीएम सिर्फ इतना बोल के उछाड़ देगा। हमको चाहिए कि हम सब एकजुट होकर सारे मुसलमान सब भले वो कौन सा ये मसलक के भी हो, सब मिलकर जाकर अपनी फोर्स से बात करना चाहिए। तो ये पकड़ने का जो ये है वो उसको बंद करवाना चाहिए। और कर्नाटक में वक्फ बोर्ड इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं, सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। मेंबर साजी और सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी जो तारीख है वो 9 अगस्त है। वहीं 17 अगस्त के बाद कैलेंडर ऑफ इवेंट जारी होगा। वाज़ेह है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में मेंबरान के लिए वोटिंग होनी है और 1 लाख से ज्यादा अवकाफ इदारे ही वोटिंग कर सकते हैं। तकरीबन 1150 ऐसे इदारे हैं जिनकी आमदनी 1 लाख सालाना है। वजीर बराए वक्फ और हज जमीर अहमद ने शफाफियत के साथ ही इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई है। शफाफियत के साथ उन्होंने इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई है। नहीं, इलेक्शन का तो अनाउंस हो गया ना, अब इलेक्शन कमिश्नर भेज दिया, प्रोसीजर चल रहा है, वो कभी भी इलेक्शन अनाउंस हो सकता है, कभी भी इलेक्शन। मैं बोल रहा हूँ ना सर, आज हमारी वफ़ की जो प्रॉपर्टी है, ये जो वफ़ जो करते हैं कई के लिए करते हैं। अभी वफ़ कोई भी करता है किसके लिए करता है, उनके ख़ानदान वाले भी होते हैं, वो हट के क्यों वफ़ करते हैं, हमारी इस प्रॉपर्टी से हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचना चाहिए करके। अगर वो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, आज मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी हमारी कर्नाटका के अंदर जो वफ़ प्रॉपर्टीज जो है करेक्ट हम लोग अगर यूटिलाइज करेंगे उसको, आज गवर्नमेंट से हमको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को हम
एनरोलमेंट ऑफिसर रीजनल कमिश्नर बेंगलुरु डिवीजन को गवर्नमेंट एनरोलमेंट ऑफिसर बना के है। अब वो एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है और उसकी आखिरी तारीख जो है 9/8/2018 है, अगस्त के। उसके बाद में जो है ड्राफ्ट रोल 10 सितंबर को इशू होती है और अब एतराज़ दाखिल करने की डेट 11/9 से 25/9 तक। उसके बाद फाइनल जो है 17 अक्टूबर को ये इशू होती है, फाइनल लिस्ट फाइनल। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस कैलेंडर। और कर्नाटक में अलग रियासत को लेकर मुजाहरों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल्याण कर्नाटक की कई तंजीमों ने दस्तखती मुहिम चलाकर अलग रियासत का मुतालबा किया है। हैदराबाद कर्नाटक को अलग करने की मांग को लेकर हुए मुजाहरे में बड़ी तादाद में वकला भी शामिल हुए। इस दौरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। Since 20 years, Hyderabad Karnataka area is drought hit. Since 20 years, students of this area are not getting any employment, education properly. Hence, since 20 years, Vajnath Patel has fought for 371J amendment. Then also, since 5 years, government is not making any serious efforts to implement that section 371J for the youths of this area. Hence, we are started today a sign campaign for the new separate state, Kalyana Karnataka. I appeal this present government, young dynamic Kumaraswamy has considered our letter. Last year we have submitted letter to make this issue for the sake of development of this area. He positively taken our memorandum and shortly he will make announce. For the political compulsion, he is supporting Uttar Karnataka, not Kalyan Karnataka. पूरा मुल्क बारिश और सैलाब से परेशान है, लेकिन कर्नाटक के कलबुर्गी के किसान खस्ताहाली की मार झेल रहे हैं। हुकूमतों से मायूस ये किसान अब ऊपर वाले पर ही पूरे तरह से इसके भरोसे में हैं। उनका कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। शुरुआती बारिश के बाद खेत में बीज तो डाला, लेकिन सब जलकर खाक हो गया है। इस मौके पर सरकारी स्कीमों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये सब बातें सिर्फ टीवी पर चलती हैं, सियासत की जाती है, लेकिन अमल में कुछ नहीं होता। 20-25 दिन का पहला बारिश आया था, अब तो नहीं आया। सब लोगों 20-25 दिन का पहला बारिश आया, सब खेती काम चालू करना बोल के तूर डाले, वो गोबर सब डाल के गए। अब बारिश तो नहीं आ रहा है, एक भी नाटी नहीं उठे अभी तक भी। किसान लोगों का बहुत ये है, कौन सा सरकार भी क्या भी नहीं करता किसान लोगों को। अभी तक क्रॉप लोन भी वो वगैरह बोलते, टीवी में बोलते, वो न्यूज में बोलते, वो इतना बोलने का काम ही उतना है, मगर कौन सा भी सहूलत किसानों का जरूरी उनका घर तक आके कौन भी नहीं देता अभी तक। ऐसा हो गए, बारिश तो गया, किसानों का बहुत परेशानी है। हमारा गांव में तो 100% भी किसान लोग अभी तक बहुत परेशान में है। सब लोग डाले, बारिश नहीं आ रहे। थोड़े दिन पहले थोड़ा बारिश आया सरकार करे, अब तो बारिश नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसे थोड़े छोटे पीका भी सब खत्म हो गया, सब सूख गए। फिर हमारे को क्या है, सरकार वो देते, ये देते, इंश्योरेंस देते, वो देते, बोलते इंश्योरेंस किसको भी नहीं आ रहा है, किसानों लोगों को नहीं है। इस वजह से क्या है, वो किसानों लोगों को थोड़ा तकलीफ है सब। और अब कैसा पलना बोल के थोड़ा तकलीफ हो रहा है किसान लोगों को। हाँ, पहले बारिश नहीं आए तो हम पेरते थे नहीं साहब, हमारे को गोबरी भी लॉस नहीं होता था, बीज भी लॉस नहीं होता था। ऐसा होकर बहुत लॉस में है सब किसान लोग। केरल में भारी बारिश की वजह से आए सैलाब और लैंडस्लाइड से गुज़िश्ता 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने 10 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। हालात को देखते हुए सीएम पी विजयन ने मीटिंग तलब की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि फौज और एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। हालात को देखते हुए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस रद्द कर दी गई है। उधर कोच्चि एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से जल्द ही इसे बंद किया जा सकता है। अगले नोटिफिकेशन तक एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं होगी। इस दौरान खबर है कि भारी बारिश की वजह से इडुक्की बांध में उम्मीद से ज्यादा पानी भर गया, जिससे कि बचाने के लिए 26 साल बाद इसे खोला गया। इसकी वजह से भी कई इलाकों में पानी की तबाही सामने आ रही है। इससे पहले भी इदा मालियार बांध के 4 गेट खोले गए थे। Came here at Aluba guest house
to preposition on the eve of release of water from Idamalera Dam. And we have a DM equipments like NDRF boats, scuba sets to tackle any situations arising out of this releasing water. And we are here to respond as per the demands, as per the situation, incidents, situation. Idamalera Dam has been opened today morning in a controlled fashion. As of now, in Alua area, we have seen that the water level has increased by about 1 meter, 1 to 1.5 meter. There is no need to panic or of any big concern. Right now, we are well within the capacity to handle this. We have opened 2 camps, which are normally in the low-level areas. So as of now, we don't see any reason for panicking or of great concern. Our field staff, village officers and revenue department along with police and fire and rescue and NDRF team which is also stationed here is all on high alert and they are following it up. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पुराने जमाने की मशहूर कारों को एक साथ देखने का एक अलग ही नजारा देखने के मिला। अलग अलग मॉडल के कार, 2 व्हीलर की पुरानी गाड़ियों का यहां पर मेला लगा हुआ था। कार भी थी और 2 व्हीलर्स भी थे पुराने, जहां लोग एक दूसरे की गाड़ियों की तारीफ कर रहे थे, जबकि उनके मालिकान का कहना है कि उनकी पुरानी गाड़ियां आज के नए मॉडल से बेहतर साबित हो रही हैं। तो विंटेज कार का ये खास एग्जीबिशन चेन्नई में। तो सलाम दक्कन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।